Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we're going to talk about the cell death. So cell death are basically the ultimate stage in a cell injury. When cells are injured, they die by different mechanism depending upon the nature and severity of insult, and most important, how much duration for the stress or the insult is acting upon that particular cell. If the duration is more than the bearing capacity of the cell will undergo cell death. But if it's within the limit, the stress is within the limit and for shorter duration, the cell will undergo reversible cell injury, and after the stress is removed, the cell will return to the normal stage. But if the nature and severity of insult is very much, that's beyond the capacity of the cell will undergo cell death. There are various mechanisms by which cell can undergo cell death. Most common one is the necrosis, apoptosis. Apart from these two, we have 2 to 3 more mechanisms of cell death, including pyroptosis, necroptosis, and other various mechanisms. So first of all, we're going to discuss about the necrosis. So how can you say whether a cell is going necrosis, apoptosis, or what type of cell death mechanism? So if you see a cell undergoing cell death or change in the normal function of a cell, you have to look at its morphological features, what the cell is representing, and depending upon that basis you can judge whether a cell is going necrosis or apoptosis or other cellular death mechanism. Okay, so if the cell is undergoing necrosis, it will show some morphological features. So let's study about them. So necrosis is basically a form of cell death in which the cellular contents fall apart, that is the cellular membrane is getting fall apart and the cellular enzyme leak out, which ultimately touches the cell. It's very important point that the enzymes leak out in case of necrosis. So this will basically lead to what thing? That's the inflammation. So inflammation is a characteristic feature of the necrosis because the enzymes are leaking out of the cell membrane. Why? Because the cellular membranes have fall apart, which ultimately digests the cell. So it is basically a most common form of cell death. तो सेल डेथ बाय नेक्रोसिस होने के क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, यानी कि किन मैकेनिज्म से ये नेक्रोसिस डैमेज करता है सेल को. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. So protein is getting denatured, then ultimately the cell will undergo cell death because it is not able to carry out its normal functions. Second important one is the enzymatic digestion of cells. Because the lysosomes membrane, that is cellular membranes, are falling apart, that's why lysosome membrane will also fall apart, which will release hydrolytic enzymes which will digest the cell. Okay, so enzyme digestion of cells is very important process of the necrosis. So depending upon the type of necrosis or the morphological features in necrosis, we have divided necrosis into 6 categories: coagulative, liquefactive, fat necrosis, gaseous, gangrenous and fibrinoid. Okay, तो बहुत ही सिंपल है, हम सबको बहुत ही बारीकी से स्टडी करेंगे और बहुत ही सिंपल वे में सबको समझेंगे. जो गैंग्रीनस नेक्रोसिस है, ये कोई डेफिनेट नेक्रोसिस नहीं होता, कुछ स्पेशल फीचर्स नहीं देखते, बट क्लिनिकली हम बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं वर्ड गैंग्रीन, क्योंकि जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी होता है उसमें जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है और जो स्पेशली द टोज रीजन यानी कि फुट रीजन में जब नेक्रोसिस होता है ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, उसको हम यूजुअली रेफ़र करते हैं गैंग्रीन से. तो गैंग्रीन को बेसिकली कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेशल नेक्रोसिस नहीं है, ये कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव का एक वर्जन है, इस बारे में आगे पढ़ेंगे. सो बेसिकली ये गैंग्रीनस को हम एज ए नेक्रोसिस में नहीं जोड़ सकते, ठीक है, बट क्लिनिकली हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको स्टडी करेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज कॉल्ड द कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. ठीक है, इस नेक्रोसिस के बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट द अंडरलाइंग टिश्यू आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व, यानी कि सेल भले ही अंदर से डैमेज है पर इसका जो मेम्ब्रेन है यानी कि आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज प्रिजर्व. इफ आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स आर प्रिजर्व, बेसिकली वी कैन से दैट द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ होल टिश्यू इज ऑल्सो प्रिजर्व. So in this form, the underlying tissue architecture is preserved for at least several days after death of cells in tissue. भले ही सपोज ये टिश्यू है, उसमें सेल की डेथ हो जा रही है, सपोज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, बट द सेल्स का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो रिटेन है. दैट्स वाई द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू विल ऑल्सो बी retain. Even though cell is undergone cell death, is not able to carry out its function, but as its structure is retained, the structure of the tissue will be also preserved. The affected tissue takes on a firm structure due to deposition of other substances from the body. तो अभी कहाँ पर कोगुलेटिव नेक्रोसिस शो होता है हमारी बॉडी में? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
liver, kidney, heart, spleen and other solid organs. So basically it is affecting the solid organs except brain. So here is one notable point. Except brain, most of the solid organs are affected by coagulative necrosis, especially liver, kidney, heart, spleen, etc. Most affected is the heart. So heart is the most affected organ undergoing coagulative necrosis. Now let's see the mechanism by which the coagulative necrosis occurs. आपको बताया डिपेंडिंग ऑन वेरियस मैकेनिज्म हमने नेक्रोसिस को डिफरेंट पार्ट में स्टडी किया है या फिर डिफरेंट पार्ट में हमने उनको बांटा है कि किस मैकेनिज्म से हो रहा है नेक्रोसिस. तो नेक्रोसिस इन कोगुलेटिव टाइप इज ड्यू टू द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का डीनेचरेशन हो जा रहा है. दो मोस्ट कॉमन वेज जिससे नेक्रोसिस होता है वो है डीनेचर ऑफ प्रोटीन और एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल्स. इन कोगुलेटिव नेक्रोसिस डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन अकर. And what is the cause for the coagulative necrosis? As I told you in the very beginning, hypoxia is the most important cause of cell injury, and here is the most important cause of coagulative necrosis as well. Apart from that, you can get the coagulative necrosis due to severe burns or Zenker degeneration. Zenker degeneration occurs basically due to the severe toxinemia. So if there is accumulation of toxins in the body, this will affect the muscles like rectus abdominis and diaphragm, leading to its abnormal function or improper functioning of this muscle. So Zenker degeneration is one of the cause for the coagulative necrosis. So if you suppose you have got a slide and you have to identify which type of necrosis is this, so you have to study the He staining of the coagulative necrosis. So if you study the He stain, you will find that the cellular architecture or outline is preserved. Okay, so we will look in the diagram as well, but you have to remember 4 points in the case of He staining, that is the cell architecture or cell outline is preserved in case of the coagulative necrosis. Cell become eosinophilic, मतलब उसको जो पर्टिकुलर कलर होता है पिंक स्टेन या वॉलेट स्टेन के लिए, स्पेशली ईओसिन के स्टेन के लिए मोर इसका अफिनिटी बढ़ जाएगा. ठीक है, अफिनिटी विल मोर फॉर द eosinophil. Okay, now cells have glossy appearance due to loss of glycogen. This is also characteristic point of the He staining of coagulative necrosis. Moreover, cells have moth-eaten appearance due to loss of organelles. Even though cellular architecture is retained, but the organelles are absent because the cell has undergone necrosis. That's why it had given the appearance of moth-eaten. Moth-eaten appearance is basically because outline is there, but अंदर से एकदम खाली है, खोखला हो जाता है. जैसे दीमक के टर्माइट एक्ट करते हैं ना, बाहर से भले स्ट्रक्चर रिटेन है, इवन दो इट इज़ फेक, पर अंदर से पूरा ये खाली हो जाता है. ठीक है, दिस इज बेसिकली अबाउट द कोगुलेटिव नेक्रोसिस. नाउ लेट अस लुक एट द डायग्राम. इफ यू लुक एट द डायग्राम, you will easily point out the following features. So here is a diagram of coagulative necrosis that you'll find in the Robbins basic pathology of disease. So in the diagram number A, you can see a wedge-shaped kidney infarct with preservation of the outlines. As you can see in the diagram number A, a triangular infarct region is clearly visible. That's in the pale yellow color. Here you can see the infarct region, in which the underlying tissue architecture is preserved. While on the B figure, you can see the He staining, that's the microscopic view of the edge of the infarct and the normal kidney. So on the left side, you can see that if you draw a diagonal, the green line is signifying the line between the necrotic tissue and the normal tissue. So left of the green line is signifying the normal tissue in the He stain, and right is signifying the necrotic tissue. So the characteristic feature of the He stain was the cellular outline preserved in case of the coagulative necrosis. So you can see the right half of the B figure, the cellular outline is preserved, but the nuclei has come out in the cytoplasm along with the necrotic tissue, that is the inflammatory infiltrate, that is clearly visible, and the cells have become eosinophilic. Now let us study about the liquefactive or colliquative necrosis. Colliquative is the other name for the liquefactive, but we most commonly use the word liquefactive. Okay, it occurs in brain. तो हमारा जो पहले टाइप का नेक्रोसिस था जिसे हमने बोला था कोगुलेटिव नेक्रोसिस, उसमें क्या था, सॉलिड ऑर्गन्स मोस्टली जो अफेक्टेड था वो था हार्ट, इसके अलावा स्प्लीन और बाकी किडनी भी अफेक्टेड होती है.
पर उसमें ब्रेन इफेक्ट नहीं होता। तो ब्रेन में क्या दिखता है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। So most common example of liquefactive necrosis occurs in which organ? You will mark your answer as brain. Apart from that, it is also seen in fungal and bacterial infection and abscess, in which there is a pus formation. So pus formation is a characteristic feature of, you can say, of liquefactive necrosis. So pus formation is basically a feature of liquefactive necrosis. In this type of necrosis, there is enzymatic digestion of cells. The microbes which are affecting the cells rapidly stimulate the accumulation of inflammatory cells, and the enzyme of leukocyte digest the tissue. Okay, so if suppose there is entry of leukocyte in the tissue, and it will basically act on the affected cells and the microbes and will digest the tissue. That's why liver liquefy is used to demonstrate this type of necrosis. In this type of necrosis, cellular outline is not preserved, while in the coagulative necrosis, cellular outline was preserved. And it is also responsible for the wet gangrene. Gangrene basically refers to the necrosis in the leg. If there is necrosis in the leg, it is also called the gangrenous necrosis. And gangrenous necrosis is of two types, dry and wet, and we will discuss about it later. So liquefactive necrosis is responsible for the wet gangrene. It is occurs in brain and the fungal and bacterial infection and abscess. Now let us look at the diagram. So here you can see an infarct in the brain showing dissolution of the tissue. तो ये बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ टिश्यू भी दिखा जाता है हमारा लिक्विफैक्टिव या कोलिक्यूटिव नेक्रोसिस में, जहाँ पर सेलुलर जो आउटलाइन होती है प्रिजर्व नहीं होती है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेट गैंग्रीन. ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमनली फाउंड एग्जांपल आता है ब्रेन में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का. नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज कॉल्ड द केशियस नेक्रोसिस. अब इस केशियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? चीज़ लाइक. अब चीज़ लाइक से क्या आपको कैसे इसका नाम चीज़ लाइक पड़ा? बिकॉज जो इसका नेक्रोसिस का अपीयरेंस होगा ये होगा कॉटेज चीज़ लाइक अपीयरेंस. सो यू हैव टू रिमेंबर कॉटेज चीज़ लाइक अपीयरेंस इज रिलेटेड टू द केशियस नेक्रोसिस. इट्स रिफर्ड टू द फ्राइबल येलो वाइट अपीयरेंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप उसका यहाँ फोटो डायग्राम में भी देखेंगे. पर येलो वाइट अपीयरेंस ऑफ द एरिया ऑफ नेक्रोसिस ऑन ग्रॉस एग्जामिनेशन. सो विल एग्जामिन द area of necrosis, you'll find that there is yellow white appearance which will appear like cottage cheese. That's why इसका नाम क्या पड़ा है? Caseous necrosis. It's most common encountered in the foci of or the focus of the tuberculous infection. That's why ये lungs में बहुत ही common है, because tuberculosis are affecting mostly the lungs. Caseous necrosis basically a combination of coagulative and liquefactive. तो हमने पहले दो टाइप के जो नेक्रोसिस पढ़े थे उनका ही कॉम्बिनेशन है. पर आप रॉबिन्स के पुराने एडिशन आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया कि कोगुलेटिव का जो इसमें कंट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि सेलुलर आउटलाइन प्रिजर्व्ड इसमें कई केसेस में ज़्यादातर रहती है. और जो क्रॉस एग्जामिनेशन में येलो वाइट अपीयरेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केशियस नेक्रोसिस. और हिस्टोलॉजी की बात किया जाए तो इट इज़ पिंक एंड ग्रेनुलर अपीयरेंस. अब ग्रेनुलर अपीयरेंस क्यों आ रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, एंड मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट बेसिकली अपीयर इन द लिक्विफैक्टिव. तो ये जो पोर्शन आता है ग्रेनुलर अपीयरेंस, इट इज़ ड्यू टू द पार्ट ऑफ द लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस दैट अकर्स इन केशियस टाइप ऑफ नेक्रोसिस. ठीक है, देखिए केशियस नेक्रोसिस कुछ अलग नहीं है कि अगर कोगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव साथ में हो रहे तो उन्हें बोलेंगे हम केशियस. जो कोगुलेटिव पार्ट होता है वो उसको क्या कराता है? इसका पिंक अपीयरेंस करेगा क्योंकि ईओसिनोफिलिया हमें शो होता है. और ग्रेनुलर अपीयरेंस बेसिकली ड्यू द लिक्विफैक्टिव, क्योंकि यहाँ पर हमारी मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट बेसिकली द ल्यूकोसाइट्स एंटर द सेल्स. ओके, एग्जाम्पल क्या है? ट्यूबरक्लोसिस में माइकोलिक एसिड में इंक्रीज लिपिड कंटेंट और फंगल इन्फेक्शन लाइक हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड कोक्यूडियोमाइकोसिस. ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखने हैं. ये देखिए कि आपको अभी नहीं तो कभी याद करना ही पड़ेगा, इधर इन द माइक्रो और इन द पैथो. जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंगल इन्फेक्शन लाइक हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड कोक्यूडियोमाइकोसिस. आपको दोनों एग्जाम्पल बहुत ही कॉमनली याद करना है, एग्जाम में यूजुअली पूछते हैं. ठीक है, और नहीं इंपॉर्टेंट होता है तो मैं बिल्कुल यहाँ पर मेंशन नहीं करता, बट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस लुक एट द डायग्राम ऑफ द केशियस नेक्रोसिस. अगर आपको उस केशियस वर्ड का मीनिंग पता है, दैट्स कॉटेज चीज़ लाइक अपीयरेंस, आप बहुत ही ईजिली सारी पॉइंट्स उस में बता सकते हैं. तो बेसिकली एग्जांपल देखा जाएगा लंग्स में, बिकॉज केशियस नेक्रोसिस दिखा जाता है इनकाउंटर इन द फोकाई ऑफ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, एंड यू कैन सी द येलो वाइट अपीयरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द नेक्रोसिस ऑन ग्रॉस एग्जामिनेशन. अगर आप HSTN देखें एक केशियस नेक्रोसिस का, तो उसमें आपको जो बताया था पिंक ग्रेनुलर अपीयरेंस बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है.
और ग्रेन्युलर अपीयरेंस इसलिए है क्योंकि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट की वजह से। तो दिस इज बेसिकली हाउ एच स्टेन लुक लाइक। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस है उसे बोलते हैं फैट नेक्रोसिस। इट रिफर्स टू द फोकल एरियाज ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम द रिलीज ऑफ एक्टिवेटेड पेनक्रियाटिक लाइपेज। ये बहुत ही कॉमन कॉज है, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही पाया जाता है पेनक्रियाटिक लाइपेज के एक्टिवेशन से, जो कि डैमेज हो जाता है पेनक्रियाटाइटिस में, यानी कि पेनक्रियास इन्फ्लेमेशन में, और ये डैमेज कर देता है फैट को। तो फैट नेक्रोसिस बेसिकली इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एक्टिवेटेड पेनक्रियाटिक लाइपेज इनटू द सब्सटेंस ऑफ पेनक्रियास एंड द पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, तो जब देखिए सपोज ये है पेनक्रियास, पेनक्रियास में जब डैमेज होता है तो उससे क्या होता है, लाइपेज इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, तो जो इसके एसिनाइन सेल्स होते हैं वो लाइपेज रिलीज करते हैं इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, बट पेनक्रियाटाइटिस में यानी कि पेनक्रियास इन्फ्लेमेशन में ये एक्टिवेट हो जाता है और इट एक्ट्स अपॉन द फैट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के अंदर जो फैट है उस पर एक्ट करता है और फ्री फैटी एसिड का रिलीज करवाता है। जो फ्री फैटी एसिड होते हैं वो कैल्शियम से कंबाइन करके चौकीवाट डिपॉजिट, या फिर नहीं कि इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैल्शियम प्लस फ्री फैटी एसिड फॉर्म बेसिकली एक सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, और ये लीड करता है चौकीवाट डिपॉजिट के लिए। अब फैट नेक्रोसिस दो टाइप के होते हैं, इंजाइमेटिक ड्यू टू सम एंजाइम जो हमने एग्जांपल अभी डिस्कस किया, और ड्यू टू सम इंजरी। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल हो जाता है ब्रेस्ट, और इंजाइमेटिक में पेनक्रियास हो जाता है, यानी कि फैट लेडन स्ट्रक्चर जो होते हैं पेनक्रियास, मेजेंट्री, ओमेंटम, ये इफेक्ट होते हैं। तो फैट नेक्रोसिस बेसिकली कुछ नहीं है, फैट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है ड्यू टू द लाइपेज, स्पेशली और मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द रिलीज ऑफ द पेनक्रियाटिक लाइपेज विच डैमेजेस द फैट and lead to the chalky white deposit in the cell. So this is how fat necrosis look like. You can appreciate the areas of white chalky deposit which is nothing with the free fatty acid plus calcium. So this is how fat necrosis tissue look like in the mesentery. जो नेक्स्ट टाइप नेक्रोसिस है उसे बोलते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अब फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हमको सबसे पहले जब भी आए आपको यही दिमाग रखना है कि ये यूजुअली आर्टरीज में देखते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, आपको बहुत ही अच्छा डायग्राम है, रॉबिन्स में दिया है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस बेसिकली इफेक्ट द आर्टरीज, आपको दिमाग में रखना है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीनेशियस डिपॉजिट होता है। ठीक, प्रोटीनेशियस डिपॉजिट अकरिंग इन द आर्टरीज इज बेसिकली द फिब्रिनॉइड आर्टरीज, आपको इतना दिमाग में रखना है। तो और भी जगह होता है पर हमने इतना याद रखना है, वेसल्स में ये इफेक्ट होता है। तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस अकर्स इन फर्स्ट इज द वेसल्स। तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस से वेसल्स में इफेक्ट करना है बिकॉज ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। और इट कैन ऑल्सो कर इन टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखिए टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आपको नोटिफिकेशन बेल दबा देनी है और सब्सक्राइब बटन भी दबा देना ताकि आपको उस खाने की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, जिसका मटेरियल होता है वो ब्राइट पिंक अमॉर्फस अपीयरेंस ऑन एचई प्रिपरेशन। ठीक है, आप इसका एचई स्टेन अगर करते हैं तो आपको ब्राइट पिंक अमॉर्फस अपीयरेंस दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं फिब्रिनॉइड। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कैसा ये फिब्रिनॉइड दिखता है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या होगा, एश ऑफ नोड्यूल्स, पैनवेस्कुलाइटिस और मैग्नेट हाइपरटेंशन में दिखता है। तो ठीक है, रिमेटॉइड फीवर में क्या होता है, कार्डियक टिश्यू अफेक्टेड होती है, उसमें दिखता है एश ऑफ नोड्यूल्स। इसकी भी हम आगे जब हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो उसमें ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस बेसिकली अफेक्ट द वेसल्स और इट इज ऑल्सो सीन इन द टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। सो लेट अस लुक एट द डायग्राम ऑफ द फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस एंड स्पेशली लुक एट द fibrinoid in the vessels. In this diagram, you can see the fibrinoid necrosis in an artery in a patient with polyarteritis nodosa. So the wall of the artery shows a circumferential bright pink area of necrosis with protein deposition and inflammation. तो bright pink area आपको concentric ring दिख रही है, that's basically the proteinaceous deposit in case of fibrinoid necrosis. अभी जो लास्ट टाइप नेक्रोसिस है ये बेसिकली कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है। जो गैंग्रीनियस नेक्रोसिस होती है ये जब क्या होता है, रिड्यूस ब्लड सप्लाई इन लेग, उससे जब नेक्रोसिस होती है तो उसे हम बोलते हैं गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। अब यूजुअली ये दो कॉज की वजह से हो सकती है, या तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से या फिर तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की वजह से। अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा तो आपको मेरे ख्याल से आप काफ़ी होशियार हैं, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस में जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो या फिर सेलुलर आउटलाइन होती है वो रिटेन होती है, तो उसे हम बोलते हैं ड्राई गैंग्रीन। ठीक है, विच इज़ बेसिकली ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई। लिक्विफेक्टिव में क्या होता है, जो सेलुलर आउटलाइन होती है वो रिटेन नहीं होती है और देयर इज पस फॉर्मेशन।
तो दैट साइड इट इज कॉल्ड द वेट गैंग्रीन एंड इट occurs ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई एज वेल एज सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन है और डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई है तो उसे बोलेंगे ड्राई गैंग्रीन। कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो रही है तो उसे बोलेंगे वेट गैंग्रीन। अब वेट गैंग्रीन की एक स्पेशल टाइप है जिसे बोलते हैं गैस गैंग्रीन। इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ट्रिपल VIP आप लिख सकते हैं, डबल हैश मैं मार्क कर रहा हूँ। क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई में एक गैस प्रोड्यूस करती है सबक्यूटेनियस टिश्यू में जिसे हम बोलते हैं गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन किसका सब टाइप है? वेट गैंग्रीन का। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये पॉइंट भी रखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इससे रिलेटेड है। So in this diagram you can see the how the gangrene look like. So you can see both the dry gangrene and the wet gangrene on the left and right side respectively. So this was all about the necrosis. If you like the video, please hit the like button and do subscribe and share channel. Thanks for watching.